10th क्लास में जीरोस इतने टॉपिक अपन लोग पढ़ चुके थे 10th क्लास। टॉपिक नंबर फर्स्ट पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से याद दिला दे रहे वेरिफिकेशन क्या होता था। सपोज यू हैव गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, दिस इज पी एक्स। पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x minus 18. Suppose you have given this polynomial. Now you need to find the zeros. You need to find number of zeros and then verify the relationship between zeros and the coefficient of the polynomial. So first of all you have to find zeros. That's why polynomial, the value of polynomial is equal to 0, should be 0. So this implies x square plus 7x minus 18 is equal to 0. X square plus 7x minus 18 is equal to 0. Split the middle term, factorization method. उस वाले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था. So split the middle term in two parts such that sum of these two parts will be 7 and the product of these two parts is equal to the multiplication of AC, because general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. So the method of factorization says that split b in two parts, such that summation of these two parts should be equal to b and the product of these two parts will equal to product of AC. So x square plus 9x minus 2x minus 18 is equal to 0. Split the part 7 in two parts, 9 and minus 2. 9 minus 2, addition of 9 and minus 2 is 7 and the multiplication of 9 and minus 2, 18 minus 18 and the product of a into c, a is 1, 1 into c minus 18. तो हमने जो बताया आपको कि बीच वाले को इस तरीके से तोड़ो कि उसका जो सम है वो वापस 7 के बराबर हो, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो a और c के प्रोडक्ट के बराबर है। कॉमन x कॉमन, x प्लस 9 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. नाउ x प्लस 9 इज कॉमन, x प्लस 9 कॉमन, इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू 0. x प्लस 9 and x minus 2 is equal to 0. Now x plus 9 equal to 0, so x equal to minus 9, x minus 2 equal 0, so this implies x equal to 2. X plus 9 equal to 0, so x is equal to minus 9, x minus 2 equal to 0, so x is equal to 2. If x equal to minus 9, suppose this is alpha and this is beta, alpha and beta. So for verification, first formula is alpha plus beta equal minus b upon a and alpha beta equal to c upon a. Alpha and beta are zeros, so sum of zeros is equal to minus b upon a and the product of zeros is equal to c upon a. Alpha is equal to minus 9 and beta is equal to 2. For verification, you have to solve these two formulas. First of all, you have to take left hand side. In left hand side, alpha plus beta is mentioned there, so put the value of alpha and beta. It is not boundation that first is alpha and second is beta. It's depend on you. If you want to consider this is beta and this is alpha, it is okay. So alpha minus 9 plus beta is 2, so minus 9 plus 2 minus 7. In right hand side minus b upon a, so minus b in place of b is ax square plus bx plus c.
the coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and the coefficient and constant term is c. So this is polynomial. A is 1, b is 7. So in place of b 7 upon a, so value of a is 1. So minus 7. Again for verification of this formula, left hand side alpha into beta. Alpha means alpha into beta. Alpha means, so alpha means minus 9 and beta means 2. So minus 9 and beta means 2. So you have minus 18. Now right hand side c upon a. C upon a. C upon a. Value of c. C is minus 18. C is minus 18 and a is 1. So minus 18 upon 1. So answer is minus 18. Understood? So this is the finding zeros and the verification. Now today's topic is finding polynomial when you have given zeros. अभी आपने क्या पढ़ा? हमें पॉलिनोमियल दिया था, हमने उसके जीरोस निकालना सीखे और वेरिफिकेशन करना सीखी, जिसके लिए हमें टू फॉर्मूलाज जो दिए हुए हैं वो याद होने चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. वेरिफिकेशन फॉर्मूलाज हैं. अब व्हेनेवर यू हैव गिवन जीरोस, सपोज यू हैव गिवन टू जीरोस अल्फा एंड बीटा. सीधा सा मतलब है हिंदी में समझो भाई कि अभी तक पॉलिनोमियल दिया होता था उसके जीरोस हमें निकालने होते थे. अगर हमें जीरोस दिए हों और पॉलिनोमियल बनाना हो, यानी अल्फा और बीटा आपको जीरोस दिए हैं, उससे पॉलिनोमियल बनाना है, देन द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज formula of quadratic polynomial is alpha and beta. Zeros you have given. So for the formula of quadratic polynomial, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. X square minus sum of zeros into x plus product of zeros and k constant. Then bracket close. K x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. ये आपको याद रखना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है. ठीक है, देखो जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल हमने बोला सपोज you have given zeros माइनस 2 and 3. मान लो हमने आपसे बोला सपोज यू हैव गिवन, तो हमें जीरोस दिए गए हैं माइनस 2 and 3. अगर आपको माइनस 2 और 3 जीरोस के तौर पे दिए हुए हैं तो आपको जरूरत होती है फॉर्मूले में सम ऑफ जीरोस की. तो सम ऑफ जीरोस निकाल लो आप. सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस 2 प्लस 3, सम कर लो इनका तो 1 आ जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, so now you have to find product of zeros. Simple. Minus 2 into 3 minus 6. Put these value in formula. So k in bracket x square minus, formula बस याद रखना, x square minus in bracket the value of sum of zeros. Sum of zeros is 1. So 1x plus product of zeros minus 6. So this implies k x square minus x and minus 6. आंसर. अब देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आंसर हो भी या नहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता भाई. यहाँ पर k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप रखते चले जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना मन हो उतना, तो आपको पॉलिनोमियल बहुत सारे मिलते चले जाएंगे जिनके जीरोस जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस 2 and 3 ही आएगा. तो आप इसके आंसर को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाके मैच मत करना, आपको ये आंसर ही लिखा. एनसीईआरटी में केवल इतना आ रहा होगा क्योंकि वो लोग के की जगह 1 रख के सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं. तुम यहीं छोड़ो बस, इसको ध्यान देना. बिकॉज एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस माइनस 2 and माइनस 3, मतलब
ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोस -2 और 3 हो? तो लोगों ने एक आंसर लिखा था, गलत। बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं दुनिया में, बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोस -2 एंड 3 हो सकते हैं, -2 एंड 3। यानी इसका आंसर आपका इनफाइनाइट था, क्योंकि लोग यहाँ के पे फोकस नहीं करते, तो आपको के पे फोकस करना है। और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी जीरोस दिया हो, पॉलिनोमियल बनाना हो, तो इसके थ्रू आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके के क्वेश्चन करने, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये होता है आपको डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस गिवन होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लोग आंखें बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ने बोला फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find a quadratic polynomial whose zeros are, whose sum of zeros is sum of zeros and product of zeros. Find a quadratic polynomial whose sum of zeros and product of zeros are 3 and -7। तो लोग क्या है ना, इस पूरी लाइन को नहीं पढ़ते। उन्होंने सोचा ये जीरोस हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा, फिर अपनी तरफ से फिर सम भी निकालते हैं और प्रोडक्ट भी निकालते हैं। यही गलत कर जाओगे भाई। यहाँ पे पढ़ लेना कि ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस पता है एंड ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो आपको बस सीधे फॉर्मूला लगाना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने फॉर्मूला लगाया k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros। ठीक है ना। सो k x² माइनस सम ऑफ जीरोस, 3, सम ऑफ जीरोस इज 3। डायरेक्टली वी हैव गिवन सम, ये नहीं कि इन दोनों को फिर जोड़ दो, आपको ऑलरेडी सम दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोस इज 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -7। जस्ट सॉल्व k x² माइनस 3x माइनस 7, आंसर। अंडरस्टूड? तो इसको ध्यान देना। फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन लेकर इसको समझते हैं। x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 px इक्वल, सपोज ये आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, px इक्वल x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। डिग्री 3 होती है ना सब, उसको क्यूबिक बोलते हैं। डिग्री 3 हो जाए, डिग्री 3, जब डिग्री 3 होती है तब उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है आपकी? 3 है, इसलिए ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले आपको x के प्लेस पर कोई एक वैल्यू अपने मन से रखनी होती है, जिसके लिए आंसर 0 आ जाए। यानी आप x की कोई वैल्यू अपने मन से कंसीडर करो, यहाँ पे रखो, और वो वैल्यू रखने पर इसकी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने x के प्लेस पर -1 रखा, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, हल्की सी हिंट मिलती है यहाँ से, कांस्टेंट को देखा करो। 6 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 3 और 6 जो है, यहाँ कांस्टेंट को देखो कि 6 हमारा किस किस के टेबल में आता है? 1 2 3 और 6। तो वही वैल्यूज रखा करो जिसके टेबल में ये 6 आता हो। 1 के में आएगा तो +1 रख के देखो, -1 रख के देखो। 2 के टेबल में आएगा तो +2 रख के देखो, -2 रख के देखो। 3 के टेबल में आएगा तो +3 रख के देखो, -3 रख के देखो। 4 के टेबल में आएगा तो 6 के टेबल में आएगा तो 6 रखो, माइनस, इनमें से 0 आएगा। हम 1 रखेंगे, 0 नहीं आएगा। अच्छा, ये रफ पे चेक करना, ये सब रफ पे चेक करना। जिसके लिए 0 आ जाए वो फेयर पे दिखाना। तो हमें पता है कि -1 के लिए 0 आना है। सपोज हमने x के प्लेस पे -1 रख के देखा है आपको, तो -1 होल क्यूब प्लस, गेट लगा देना, 6 -1 स्क्वायर प्लस 11 -1 प्लस 6, -1 का होल क्यूब -1 प्लस 6 -1 का स्क्वायर
1 plus 11 minus 1 and plus 6. So minus 1 plus 6 minus 11 plus 6. 6 and 6 12 minus 12 0 आ गया। तो जिस वैल्यू को भी जीरो रखने पर मतलब वैल्यू रखने पर आंसर जीरो आया तो वो तो जीरोस कहलाएगी, उसको कन्वर्ट करते हैं फैक्टर में। सर फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखो, यानी फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कुछ नहीं करना होता है, आपने x इक्वल टू -1 रखा था, -1 रखने पर आंसर जीरो आ गया। अब आप -1 को इधर ले आओ, लेफ्ट में ट्रांसफर करो तो -1 यहाँ आके हो जाएगा +1, तो x + 1 बस इक्वल को भूल जाओ। फिर इक्वल को भूल जाओ, राइट हैंड साइड को भूल जाओ कि मैंने -1 को जब लेफ्ट में ट्रांसफर किया, जब -1 को मैंने लेफ्ट साइड ट्रांसफर किया तो पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका x + 1 हो गया, x + 1 और इक्वल भूल जाओ राइट हैंड साइड, तो ये फैक्टर बन गया। जो भी फैक्टर आए उसका इसमें डिवाइड दिया करो फिर, तो x + 1 इसमें डिवाइड x³ + 6x² + 11x and +6 x + 1 x³ + 6x² + 11x और +6 में हमने डिवाइड दिया। डिवाइड दो बेटा x का x³ देखो फर्स्ट, ये 9th क्लास में था डिवाइड देना आपका, आप 10th में हो, आपने 9th में पढ़ा है, मैंने बताया था। फर्स्ट को देखा करो, फर्स्ट को कि मेरे पास क्या है x, लाना क्या है x³, तो जैसे आपके पास x है और x³ लाना है तो आपको x² की कमी है तो x² से डिवाइड जाएगा, तो x² का x में मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आएगा, फिर x² का 1 में करोगे तो 1x² आएगा, फिर माइनस खत्म। 6x² में से -1x² गया, 6x² में से 1x² चला गया, 5x² बचा प्लस 11x और प्लस का क्या बचा 6। फिर समझ लो, पहला देखते हैं बेटा, यहाँ पे x था, x³ लाना था। जो ऐसे भी ना समझ पाए तो ऐसे समझे कि मुझे जो लाना होता है, जैसे x³ लाना था, इसको रख लिया करो ऊपर, ऐसे लाना किससे था x से, उसको रख लिया करो नीचे, तो x³ और x है, एक x कट जाएगा, क्या बचेगा x, यानी डिवाइड किससे जाएगा x² से। लेकिन जिससे भी डिवाइड जाएगा उसका मल्टीप्लाई सब में होगा, तो x² का x में हुआ x³, फिर x² का 1 में हुआ तो 1x²। डिवीजन में माइनस होता है तो साइन बदल जाते हैं, ये प्लस का माइनस हो गया, ये भी प्लस का माइनस हो गया। 6x² में से 1x² गया, 5x² बचा, प्लस का 11x, प्लस का क्या हो गया 11। अब फिर देखो पहला यहाँ क्या है x, लाना क्या है 5x², तो जो लाना है वो ऊपर रखो, 5x² ऊपर रखो, 5x²। लाना किससे है x से, वो नीचे रखो, तो एक x कट जाएगा। अब डिवाइड हमारा किससे जाएगा 5x से, तो प्लस का 5x, लेकिन डिवाइड जिससे भी जाता है उसका मल्टीप्लाई सब में होता है, तो 5x का x में जब मल्टीप्लाई होगा 5x², फिर 5x का 1 में होगा 5x माइनस ये खत्म, 11x में से 5x चला गया 6x और प्लस का क्या 6, फिर देखो पहला मुझे लाना क्या है 6x, किससे लाना है x से, 6x लाना है और x से लाना है, तो जो लाना है वो ऊपर 6x ऊपर, किससे लाना है x से, वो नीचे, तो x खत्म, क्या आ गया 6 से जाएगा तो प्लस का 6 हो गया। अब 6 का x में करेंगे तो 6x और 6 का 1 में करेंगे तो 6, माइनस ये खत्म, आंसर क्या आ गया 0। तो क्या बचा, ये आया हमारे पास x² प्लस का 5x और प्लस का 6। तो जो भी हमारे पास आंसर आता है एज अ क्वेश्चन, उसको फिर से फैक्टराइज करते हैं, इसको आप फिर से फैक्टराइज करो, और इसका तरीका वही है कि बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ो, इस प्रकार तोड़ो कि उन दोनों का सम 5 के इक्वल होना चाहिए और उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 6 के बराबर होना चाहिए, AC के बराबर। तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, हमने 5 को तोड़ दिया 3 और 2 में, तो 3x प्लस 2x 3x प्लस 2x 5x आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो AC के बराबर आएगा। AC A1 है, C 6 है, तो AC 1 into 6 होता है, तो x कॉमन ले लो इन दोनों से, x प्लस 3 प्लस 2 इन दोनों से कॉमन ले लो, तो x प्लस 3। अब फर्स्ट वाले में भी x प्लस 3 है, सेकंड वाले में भी x प्लस 3 है, तो आप x प्लस 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, तो 2 फैक्टर बेटा ये हो गए और एक फैक्टर ये हो गया x प्लस 1। तो फाइनली आंसर क्या आया x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस
3, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ये आपका इसका फैक्टराइजेशन होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक बार फिर देख लो क्या करते हैं। सबसे पहले x की कोई वैल्यू अपने मन से ढूंढ के रखते हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल का आंसर क्या होना चाहिए, 0। उससे वो जीरोस कहलाता है, उससे फिर हम लोग क्या बनाते हैं, फैक्टर। फैक्टर के लिए जो भी वैल्यू है उसको लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं, -1 को लेफ्ट में ले आए तो कैसा हो गया, +1, और इक्वल हटा देते हैं, राइट हैंड साइड को भूल जाते हैं। फिर जो भी फैक्टर बनता है उसका पॉलिनोमियल में क्या देते हैं, डिवाइड। जो आंसर आता है उसको फिर से फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है। इससे रिलेटेड आज आपको होमवर्क देंगे 4-5 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।